Welcome dear students. In this particular lecture, we had to understand the concept of mutation and of course the extraordinary process of evolution with the help of its various evidences. So let's proceed one by one. Mutations. Mutations are sudden genetic changes which occurs in an organism in its nuclear content which are inheritable. These changes are inheritable. So actually we know that we resemble to our parents in most of the aspects. In some minor aspects we may differ with respect to our parents, like skin color, hair color, blood group, and some other minor changes may be there in between our parents and us. There are some differences. Similarly, in among individuals there are certain differences as well, but that is the reason for such kind of changes called mutation, okay, as well as the extraordinary process called crossing over. We will discuss later on about crossing over, but here we had to comment on especially mutation first, right? So we know that the genetic contents are inherited through chromosomes, DNA, genes, okay, to their progenies. पेरेंट्स से बच्चों में इनहेरिटेंस होता है, ओके, और इसका रीजन होता है जेनेटिक कंटेंट डीएनए, और डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। हम सब जानते हैं डीएनए किस चीज से बनेगा, बेसिक फंडामेंटल यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि बनता है तीन चीजों से न्यूक्लियोटाइड्स। किसी भी न्यूक्लियोटाइड्स में क्या है, तो यहाँ पे है नाइट्रोजीनस बेसिस, ठीक है, यहाँ पे है पेंटोस शुगर जो होती है डीऑक्सीराइबोस, इट इज डीएनए, एंड राइबोस शुगर इट इज आरएनए, ओके, एंड देन फॉस्फोरिक एसिड दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, इसमें फॉस्फेट भी होता है। तो जो नाइट्रोजनस बेसिस है, अगर ये डीएनए है तो इसमें प्यूराइंस और पायरिमिडीन्स आपको मिलेंगे, ठीक है, और ये प्यूराइन, पायरिमिडीन, नाइट्रोजन बेसिस ये होते हैं फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड। गॉट इट। एक एग्जाम्पल हम लेंगे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ म्यूटेशन इन ह्यूमंस एक्चुअली, and that example belongs to the disease category called sickle cell anemia, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं with the example of sickle cell anemia। sickle cell anemia क्या है और उसमें क्या होता है, ठीक, ये आपको पता होगा थोड़ा बहुत। so sickle cell anemia actually it is the problem of hemoglobin, right? abnormal defective hemoglobin is synthesized, so RBCs consist of conjugated protein called hemoglobin which is a respiratory pigment। ये एक respiratory pigment है, देखिए इसका binding ability है with oxygen, with carbon dioxide, and it helps in transportation of respiratory gases within our body, okay, and that is very important। तो अगर हमें हीमोग्लोबिन बनाना है तो हमें क्या चाहिए, हमें फॉलिक एसिड, आयरन, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, राइट, ये सारी चीजें हमें चाहिए, गॉट इट। बट हियर RBCs shows hemoglobin, and hemoglobin has been a protein, okay, as being a protein we can say hemoglobin consists of a chain of amino acids, right? So there is a long chain, we can show diagrammatically as well, there is a long polypeptide chain of amino acids as far as hemoglobin structure is concerned, okay। so here amino acid number 1, amino acid number 2, amino acid number 3, 4, 5 and 6 and so many। इसके बाद भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सीक्वेंस फिक्स होता है प्रोटीन का। पहला तो मीथियोनाइन होता है, आप जानते हो, ठीक है, पहला अमीनो एसिड हमेशा कौन सा होता है, मीथियोनाइन। इफ इट इज प्रोकैरियोटिक सेल देन इट इज एन फॉर्मिल मीथियोनाइन एंड कोडेड बाय द कोडॉन AUG, स्टार्ट कोडॉन, ठीक है, वी नो वेरी वेल। सो आफ्टर दैट देयर इज नो स्पेसिफिसिटी, इट चेंज और वेरी प्रोटीन टू प्रोटीन, बट if it is hemoglobin then at 6th position there should be glutamic acid। 6th position पे कौन सा अमीनो एसिड होता है, glutamic acid in case of hemoglobin। बट अगर ये ग्लूटामिक एसिड के बेस सीक्वेंस में जो कोडॉन है, अगर एक न्यूक्लियोटाइड भी अगर चेंज हो जाए, ओके, तो यहाँ पे अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह पे आ जाए वैलीन, if glutamic acid is replaced by valine, okay, then that kind of change may lead to sickle cell anemia and person shows defective hemoglobin and there is a need to blood transfuse to those persons, okay, and that may be fatal for the person, उसका उससे डेथ भी हो सकता है। तो इतना क्रिटिकल इफेक्ट होगा एक पॉइंट म्यूटेशन से
एक छोटा सा चेंज आ गया, एक न्यूक्लियोटाइड बदल गया, ओके, और उसकी वजह से आप देख सकते हो अमीनो एसिड भी चेंज हो गया। और अगर अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज होता है तो ऑफकोर्स प्रोटीन में एब्नॉर्मलिटी आती है, वो बदल सकता है, उसका कन्फिगरेशन चेंज हो जाएगा, ओके। तो इस केस में आप देख सकते हो म्यूटेशन क्या होते हैं, ऐसे छोटे माइन्यूट ये जीन म्यूटेशंस होते हैं मोस्टली, और ये बहुत ग्रेजुअली आपको देखने को मिलेंगे, बट ये चेंज सडनली हो सकता है ड्यू टू सर्टेन केमिकल्स, रेडिएशंस और मेनी अदर सच थिंग्स which may lead to such abnormal shifting, maybe frame shift mutation, okay। तो ये जो शिफ्टिंग आप देख रहे हो एक न्यूक्लियोटाइड बेस में, इसको कहा जाता है जीन म्यूटेशन, गॉट इट। So that question can be asked for 1 mark mutation as well as for maximum 2 marks, okay। So you can write a short brief note on mutation. Mutations are sudden heritable repeat, okay, heritable inheritance उसमें होता है, okay। तो इस टाइप का चेंज जो पेरेंट्स से बच्चों में इनहेरिट हो जाए उसको आप म्यूटेशन कह सकते हो, और ये म्यूटेशंस कभी माइनर भी हो सकते हैं, कभी मेजर भी हो सकते हैं, दैट इज पॉसिबल एज वेल। बट इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत धीरे धीरे रैंडमली होगा, आप देख सकते हो, इसीलिए हर जनरेशन में आपको म्यूटेशन का इफेक्ट नहीं दिखेगा। बट आफ्टर कंपैरिजन ऑफ सेवरल सक्सेसिव जनरेशंस you came to conclude that it definitely affect the process of evolution which we have to study as a major title. So हमारा टाइटल रहेगा evolution। तो evolution प्रोसेस को हमें समझना है इन डिटेल, और कुछ थ्योरीज भी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो ग्रेट प्रोसेस ऑफ evolution. So what is evolution actually? We have to define first. So it can be defined variously. It is gradual developmental change. इस टाइप का चेंज है, gradual developmental change in species composition and specific characteristics by natural selection. By what? Natural selection. Okay? नेचर सेलेक्ट करता है हमें और हम यहाँ सर्वाइव रहते हैं, ठीक। नेचर का सिलेक्शन डिपेंड करता है फेवरेबल चेंजेस पे। तो अगर किसी स्पीशीज में फेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं, ओके, तो नेचर उसको सिलेक्ट करेगा, वो स्पीशीज यहाँ सर्वाइव होगा, राइट, और उसका डेवलपमेंट ही उससे बचाएगा, राइट। और ऐसे कुछ चेंज लाने के लिए ज़रूरी होता है एवोल्यूशन। सो इट इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म। कुछ खास कैरेक्टर बदल जाते हैं और उससे एनिमल या प्लांट को हेल्प होती है तो एडजस्ट विद सराउंडिंग, ठीक है। आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है वो डायनेमिकली चेंज होता रहता है, हमें भी चेंज होना फिर ऑब्वियसली ज़रूरी है, राइट। तो इस टाइप का चेंज जो अकॉर्डिंगली आप करते हो इन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे नेचुरल सिलेक्शन से होता है, बहुत ही धीरे होता है, राइट। सो ऑल सच चेंजेस आर सेड टू बी कलेक्टिवली एवोल्यूशन, राइट। इससे नया स्पीशीज भी बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, स्पेसिएशन हो जाएगा, इससे नया स्पीशीज बन सकता है एवोल्यूशन से, ओके। और ये नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होता है, लेकिन एवोल्यूशन को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, राइट। इफ अ स्पीशीज फेल टू इवॉल्व देन इट माइट एक्सटिंक्ट, ओके। तो वो प्लैनेट से गायब भी हो सकती है, लाइक डायनासोर्स, dodo birds and many other reptiles and birds and mammals which are not exist today, okay। आज वो गायब हो गए प्लैनेट से और उसका रीजन है एक्सटिंक्शन, और एक्सटिंक्शन का रीजन है फेलियर ऑफ एवोल्यूशन। सो ईच एंड एवरी स्पीशीज टेंड टू इवॉल्व इटसेल्फ, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन एक बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है, बट वेरी ग्रेजुअल, वेरी स्लो एंड एनवायरनमेंट डिपेंडेंट, एंड ऑफ कोर्स नेचुरल सिलेक्शन प्ले क्रूशियल रोल इन एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन हुआ है ये हमें पता चलता है विद वेरियस एविडेंसेस पढ़ना है हमें एज अ मेजर कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। बट पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स कि हमारी जो अर्थ है अभी काफ़ी इवॉल्व और डेवलप्ड फॉर्म में है और सपोर्ट करती है लाइफ को, ठीक है। तो ये अर्थ का ओरिजिन, इट इज़ बिलीव दैट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, और सन ने इसमें क्रूशियल रोल प्ले किया है, ठीक है। वैसे सन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके पीछे बहुत सारे थ्योरीज है, जो ज़्यादा बिलीवेबल थ्योरीज है, बहुत सारे साइंटिस्ट बिलीव करते हैं, वो है बिग बैंग थियरी, ठीक है। बिग बैंग थियरी, ग्रेट टाइटैनिक एक्सप्लोजन वी कैन से, विच प्रोड्यूस लॉट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूडिंग सन, ओके। बट फ्रॉम सन लेटर ऑन, सन तैयार हुआ है 15 बिलियन ईयर्स अगो। सन का लाइफ कितना है, 15 बिलियन ईयर्स, ओके।
बट ये हमारी अर्थ का लाइफ देखिए 4.6 बिलियन ईयर्स, और जब अर्थ बनी क्या तब उस पर लाइफ रही होगी? कोर्स नॉट, ठीक है। अगर वो एक सन का पार्ट है तो वो तो कैसे रहा होगा? बहुत ही हीटेड, ओके, ग्लोइंग फायर, तो वहाँ पे लाइफ तो पॉसिबल नहीं रही होगी। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली लाइफ का डेवलपमेंट हुआ होगा, और फिर से एक बिलीफ है हमारा कि अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो इस प्लानेट पे लाइफ का डेवलपमेंट हुआ है इन वाटर, ठीक है। पानी के अंदर लाइफ बन चुकी है, ऐसा मान लिया है, ओके, कंसिडर किया है, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड, क्योंकि उस वक्त ना आप थे ना हम थे, ठीक है। ये एक टाइप का एनालिसिस है जो हमने किया है, राइट। अर्थ और लाइफ ऑन अर्थ, इन दोनों चीज़ों में गैप आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो इसके लिए समझने के लिए आप एक कैलेंडर को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे कैलेंडर में क्या होता है? ईयर, मंथ, वीक, डेज, ओके, सब कुछ होता है, राइट। उसी तरह एक हमारे पूरे टाइम ड्यूरेशन को हमने मैप कर दिया है 3 कंपोनेंट्स में, आप देख सकते हो, जब से अर्थ बनी है तब से। हाँ, इसको कहा जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो सबसे बड़े जो ड्यूरेशंस है, ओके, उसको इरा कहा जाता है। सबसे बड़े ड्यूरेशंस उसको क्या कहोगे आप? इरा, राइट। जैसे कि पैलियोजोइक इरा, मीजोजोइक इरा, सीनोजोइक इरा, इस पे आगे डिस्कस होगा, ठीक है। और फिर इरा से जो छोटे ड्यूरेशंस होते हैं उसको आप क्या कहते हो? पीरियड्स, जैसे कि जुरासिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड, लाइक दिस, ओके। उसके बाद उसमें जो छोटे कंपोनेंट्स रहते हैं उसको कहा जाता है इपॉक्स, राइट, इपॉक्स, उससे भी छोटे इपॉक्स, राइट। तो अगर आपको कोई इंसिडेंस बताना है, फॉर इंस्टेंस आपको बताना है कि डायनासोर्स इस प्लैनेट पे कब अबंडेंस थे, राइट, तो आप बता सकते हो कि डायनासोर्स मीजोजोइक ईरा में, राइट, जुरासिक पीरियड, मूवी तो आपने देखी होगी या सुना होगा उसके बारे में, जुरासिक पार्क इन वेरियस एपिसोड्स, ओके। बट ये जो पीरियड है, ये जुरासिक पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय रेप्टाइल, स्पेशली डायनासोर्स, ठीक है ना, आप समझ रहे हो। तो ईरा काफ़ी बड़ा ड्यूरेशन होता है, पीरियड्स उससे छोटे, और इपॉक सबसे छोटे ड्यूरेशन को कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इतना बड़ा ड्यूरेशन है कि उसको ईयर्स में और मंथ्स में कहना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसके लिए टर्म्स यूज किए जाते हैं ईरा। कोई इंसिडेंस पास्ट में कब हुआ है, इन विच ईरा, ओके, इन विच पीरियड्स एंड इपॉक्स, लाइक दैट, ओके। सो दैट इज अ कैलेंडर टू रिप्रेजेंट एनी जियोलॉजिकल पास्ट इवेंट, ओके, आप देख सकते हो। तो ये अर्थ है, इस पे लाइफ है। अब लाइफ का शुरुआत जो हो चुका है पानी के अंदर, तो उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट आई होगी, राइट। ऐसा बिलीव किया गया है कि पहले वो सेल प्रोकैरियोटिक बना होगा, जो भी बना होगा, राइट, प्रोकैरियोटिक लाइफ रही होगी, उसके बाद इवॉल्व होके उसमें चेंजेस आए होंगे और वो यूकैरियोटिक लाइफ बन गई होगी, ठीक है। और इसके बाद इसमें आया होगा थोड़ा सा डेवलपमेंट और कलेक्टिविटिज्म, ठीक। इसका मतलब है कि शुरुआत में सब छोटे इंडिविजुअल्स रहे होंगे, यूनिसेलुलर रहे होंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अगर आप एनिमल की बात करते हो, राइट, तो एनिमल सेल में आपको पता है अमीबा बहुत ही सिंपल और छोटा सेल है, सिंगल सेल है, राइट, अमीबा। उसी तरह पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम भी एनिमल सेल है और सिंगल सेल है। यूग्लिना, राइट, ये इस तरह बहुत छोटे हैं। अगर आप प्लांट की बात करते हो तो आपको पता चलेगा यूग्लिना की, जैसे आप कोई क्लोरेला एग्जांपल ले लो, ठीक है, क्लोरेला, यूग्लिना, इसमें क्लोरोफिल होता है लेकिन रहता है वो एनिमल सेल, ओके, एक्सेप्शन है। बट आप देखिए ये तो कम्प्लीटली एल्गी है, ठीक है, क्लोरेला, ग्रीन एल्गा, यूनिसेलुलर, और बहुत सारे सैनिडेस्मस वगैरह, ठीक, लेकिन ये बहुत छोटे मेंबर है, ऐसा हमें कहना है, राइट। क्लाइमिडोमोनास आप देख सकते हो, ठीक है, क्लाइमिडोमोनास, तो ये सारे एल्गी है लेकिन बहुत छोटे। तो इन छोटे मेंबर से लेकर आप देख सकते हो जायंट एनिमल्स लाइक व्हेल, व्हेल सबसे बड़ा मैमल है, आप देख सकते हो प्लैनेट पे। ह्यूमंस भी काफ़ी डेवलप्ड है, ओके। तो यहाँ पे भी डाइवर्सिटी आप देखते हो, राइट, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। क्लोरेला तो बैनियन ट्री काफ़ी बड़ा है, बैनियन ट्री, ओके। आप देखिए ये जो वेरिएशंस आया है ये क्या है, तो ये सारे वेरिएशंस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्चुअली एवोल्यूशन प्रोसेस। तो एवोल्यूशन हुआ है ये तो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन वो कैसे हुआ है इसको समझने के लिए होते हैं एविडेंसेस, ठीक है। एक छोटा कमेंट हम करेंगे ऑन थियरी ऑफ एवोल्यूशन और उसके बाद समझ पाएंगे हम बहुत सारे एविडेंसेस, राइट। सो आवर ब्रीफ टाइटल हियर इज थियरी ऑफ एवोल्यूशन. If there is a 2-mark question in board about theory of evolution, then you can comment like this. So question may be like this:
theory of evolution. Okay, so we now conclude that evolution is nothing but a process of gradual developmental changes under the influence of natural selection. ठीक है, यही evolution होता है. तो इसमें theory of evolution में क्या कमेंट करोगे आप? तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि लाइफ जो इनिशिएट हुआ है वो हुआ है इन वाटर, इन सी, ओशंस. ठीक है, और वो लाइफ का ओरिजिन जो भी हुआ है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से हुआ होगा. राइट, एक खास टेम्परेचर और प्रेशर पे वो सारी चीज़ें असेंबलेज उन्होंने दिखाया होगा. राइट, और उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ होगा ऑर्गेनिक कंटेंट का और बने होंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स. राइट, पहले मिनरल और सारी चीज़ें जो पानी में थी उनका असेंबलेज हुआ और बना एक खास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसे आप कह सकते हो कि वो मैक्रोमोलिक्यूल है. ओके, उसमें प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, उसमें न्यूक्लिक एसिड है सबसे इम्पॉर्टेंट. और जैसे ही उसमें लिपिड वगैरह भी आते हैं तो उसमें जो न्यूक्लिक एसिड है उसके बारे में सोचिए, उसके पास होता है पावर ऑफ रेप्लिकेशन, पावर ऑफ डिवीजन. ओके, तो अपने कॉपीज बनाना सीख गया है वैसा स्ट्रक्चर जिसको कहा जाएगा प्रोटोप्लाज्म. राइट, तो देखिए सबसे पहला कमेंट आपको करना होगा इन थियरी ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर. जो लाइफ का ओरिजिन है उसको आपको पानी से जोड़ना है. ठीक है, और वाटर के अंदर जो सारे इनऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं, ठीक, उन सब का कन्वर्शन आपको ऑर्गेनिक में करके दिखाना है. राइट, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स आर कन्वर्टेड टू ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. और इसमें सारी चीज़ें आ जाती है जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स, स्पेशली प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और बहुत सारे फैटी एसिड्स या फैट्स, आप ले लो लिपिड. तो इन सबसे तो बना है ना सेल. राइट, सेल के ये मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सेल इन्हीं से बना है. रिमेंबर, तो पानी के अंदर जो लाइफ तैयार हुई है उसको आपने एक नाम देना है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म. सो प्रोटोप्लाज्म इज प्रोड्यूस्ड इन वाटर एंड स्लोली ग्रेजुअली इट गेट इवॉल्व्ड. ओके, स्लोली ग्रेजुअली उसको ये जो मॉडर्न लाइफ आप देखते हो आज, प्रेजेंट लाइफ, इस तक पहुंचने में अबाउट 300 करोड़ ईयर्स लगे हैं. 300 करोड़ ईयर्स, तो इतना वक्त लग गया देखिए. लेकिन उसमें आए धीरे धीरे डेवलपमेंटल चेंजेस, वो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक हुआ और फिर उसने अपने अंदर बहुत सारे एडेप्टिव फीचर्स लेके आए. राइट, ताकि वो पानी के अंदर सर्वाइव कर सके. फिर उसने रिप्लिकेशन की एबिलिटी को डेवलप किया और उसने फिर असेंबलेज दिखाया. इस तरह उसने टिश्यू और ऑर्गन फॉर्मेशन में खुद को अडॉप्ट किया. दैट्स हाउ इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स लाइफ. ठीक है, फिर से एक बार इसमें एवोल्यूशन को डिफाइन करना होता है. तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और ये एक आइसोलेटरी मैकेनिज्म में भी हेल्प करते हैं ताकि आ जाए बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, तो इतना डाइवर्सिटी हम प्लानट पे देखते हैं लाइफ में, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इवन माइक्रोब्स हो. ओके, तो वो सब कुछ रिप्रेजेंट करता है एवोल्यूशन. सो थियरी ऑफ एवोल्यूशन इज नथिंग बट so those changes we can say which occurred in protoplasm to present day world complex life whether plant animal or microbe. तो इसमें आप देखिए बहुत सारे डेवलपमेंटल चेंजेस आए हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आए हैं. तो इन सबको नेचुरल सिलेक्शन ने भी ऑफ कोर्स अल्टर किया है और जो भी लाइफ आज प्रेजेंट है वो है मॉडर्न एग्जिस्टेंस लाइफ आप कह सकते हो. जो एग्जिस्टेड लाइफ है वो पूरी तरह इवॉल्व है और वेल सिलेक्टेड है. ओके, तो ये होता है थियरी ऑफ एवोल्यूशन. राइट, अभी जो इम्पोर्टेंट कंटेंट हम डिस्कस करेंगे वो है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन और यही है सबसे इम्पोर्टेंट. ये आपको ध्यान रखना है, इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में. राइट, तो ये क्या है, ये है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. तो एवोल्यूशन के जो एविडेंसेस है बहुत सारे हमें डिस्कस करने हैं. एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, राइट, और उसी तरह एम्ब्रियोलॉजिकल है. राइट, आप देख सकते हो बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे है जो पैलेंटोलॉजी से जुड़े हुए हैं. पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, उसमें हमें पढ़ना है कनेक्टिंग लिंक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट. कुछ ऑर्गन्स रहते हैं बॉडी में जो फंक्शनलेस हो गए अभी. राइट, तो वो वेस्टिजल ऑर्गन्स की कैटेगरी में आते हैं. तो ये सारे एविडेंसेस हमें डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में मार्किंग दिला सकते हैं. तो इसको अगर आप समझ लेते हो अच्छी तरह तो लिखना बहुत ही सिंपल. राइट, सो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में पहला एविडेंस हम देखेंगे, दैट इज कॉल्ड morphological evidences. Morphological evidences. So as far as morphology is concerned, it is branch of science which deals with study of external appearance of an organism. ठीक है, किसी प्लांट एनिमल को अगर आप एक्सटर्नली स्टडी करते हो
तो उसको आपने कहना है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी में आप स्टडी करोगे रूट, स्टेम, लीफ। एनिमल मॉर्फोलॉजी में आप स्टडी करोगे कि उनके हेयर पैटर्न कैसा है, उनका फेशियल अपीयरेंस कैसा है, उनका पोजीशन क्या है, माउथ का, नॉस्ट्रिल्स का, ईयर्स का, आईज का। ओके, यही सब कुछ पढ़ा जाता है इन ब्रांच कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। सो फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग यू शुड टेक एग्जांपल्स ऑफ सम प्लांट्स एज वेल एज सम एनिमल्स। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स का एग्जांपल ले लो। मैमल्स ले लीजिए आप। सो मैमल्स लाइक डॉग, कैट, फॉक्स वगैरह। ठीक है, इसमें आप देखिए कि उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उनके बॉडी पे सबके हेयर्स है, डेंस हेयर लाइन, राइट। उनका नॉस्ट्रिल्स का पोजीशन बिल्कुल एक जैसा लगेगा आपको, उनके पोजीशन ऑफ आईज एक जैसे लगेंगे, ईयर्स, ओके, पिन्नी वगैरह आपको दिखाई देंगे। तो ये मैमलियन फीचर्स होते हैं और मोस्ट ऑफ द मैमल्स में ये चीज़ें सेम होती है, राइट। तो इस तरह का अपीयरेंस मॉर्फोलॉजिकली वो सेम दिखाई देगा। एज फार एज प्लांट्स आर कंसर्न, प्लांट्स के आप लीफ को देखिए, लीफ में आपको उसका लेमिना, उसकी मार्जिन, एपेक्स, ओके, पिटीओल और वेनेशन, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स विद इन लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। तो वेनेशन भी आपको दिखाई देगा बहुत ही सिंप्लीफाइड, मोस्टली एक जैसा, मे बी पैरेलल, मे बी रेटिक्यूलेट। तो ये जो होता है प्लांट और एनिमल्स में सेम चीज़ें होती है। तो इसको अगर आप पढ़ते हो तो ये कौन सी ब्रांच में आ जाएगा? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। तो अगर इनमें एक जैसी चीज़ें हैं तो ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्ट्रक्चर या कंटेंट? इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा? वी कैन कंक्लूड simply by observing morphological features mostly similar that all these animals arises or came from common origin। उन सब का origin same है, ठीक है, उन सब का origin same है। आज भले उनके नाम अलग है, लेकिन अगर उनमें कुछ सेम कैरेक्टर है तो उसका मतलब है उनका कॉमन लिंक है, दे गेट इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। ऐसा तो आप उस पर कमेंट कर ही सकते हो, डेफिनेट। दूसरी चीज यहाँ पे पढ़नी है हमें, एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमिकल एविडेंसेस, ओके, ये सब एविडेंसेस है, ऊपर वाले भी और ये नीचे वाले। एनाटॉमी का मतलब समझ लेते हैं थोड़ा। एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इंटरनल इवेंट्स अगर आप स्टडी करते हो, अंदर की तरफ टिश्यू का स्टडी है, ऑर्गन्स का स्टडी है, राइट, तो इन चीज़ों को कहा जाएगा एनाटॉमिकल स्टडी। एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और अपीयरेंस। गॉट इट। अब देखिए यहाँ पे आपको अगर एनिमल्स को इंटरनली देखना है तो आप उसको डिसेक्ट करते हो, ठीक है, उसको कट करते हो। एक्सटर्नली सारी चीज़ें सेम दिखाई दे सकती है, लेकिन इंटरनली डिफरेंसेस नोट किए जा सकते हैं। तो अगर आप देखिए कुछ एग्जांपल्स और इसको कंपेयर कर सकते हो आप, राइट। जैसे कि हैंड्स ऑफ मैन, ये हमारे हाथ है, हैंड्स ऑफ मैन, ह्यूमन, राइट। उसी तरह फ्लिपर, फ्लिपर ऑफ व्हेल, व्हेल का फ्लिपर, राइट। उसी तरह पैटेजियम ऑफ बैट, पैटेजियम ऑफ बैट, ये भी आप देख लो, राइट। और उसी तरह आप कोई बर्ड ले लो, ठीक है ना, या फिर कोई अदर मैमल ले लो। बर्ड से बेटर मैमल ले सकते हैं हम यहाँ पे, लेग्स या आर्म ऑफ कैट वगैरह ले लो, कैट आर्म। हॉर्स का भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो इनमें क्या सिमिलरिटी लगती है आपको? ओके, एक्सटर्नली देखा जाए तो ये तो थोड़े अलग अलग दिखते हैं, बट इंटरनली अगर देखा जाए तो इनका जो मेकअप है, इनका जो बोन्स का मेकअप है और जॉइंट्स का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, ओके। सिमिलर मेकअप ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, इसमें आप कह सकते हो ये एनाटॉमिकली बिल्कुल एक जैसे है, मतलब उनका ओरिजिन सेम है, राइट। जहाँ से कैट, मैन, व्हेल डेवलप हुए वहीं से बैट भी डेवलप हुआ है। बैट में विंग्स है बट वो मैमल होता है, रिमेंबर, ठीक। तो यहाँ पे ये सारे मैमल्स के एग्जाम्पल लिए गए हैं और इनमें कुछ न कुछ सेम है। क्या सेम है इनमें? इनमें सेम है इनके बोन्स का स्ट्रक्चर, इनके जॉइंट्स का स्ट्रक्चर। ये अगर सेम है तो इनका लिंक कॉमन होना चाहिए, ठीक है। जहाँ से वेल का एवोल्यूशन हुआ है वहीं से मैन का भी हुआ है, ये हम कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो एक डेफिनेशन इसमें और आपको समझ लेनी है कि एनाटॉमी में एक डेफिनेशन छोटी, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। तो ये होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनमें, राइट, ध्यान रखना है, होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनमें सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर, लेकिन उनके फंक्शंस अलग होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस। सेम स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शंस। जिनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग है, ऐसे होते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। इसका एग्जांपल यही है, ठीक है, समझ गया। ये होमोलोगस ऑर्गन्स है, इनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग है।
यू कैन टेक एन एग्जाम्पल हैंड्स ऑफ मैन। हमारा हैंड्स देखिए, हमारे फिंगर्स ग्रिप कितना स्ट्रांग है इसमें, ठीक है ना। हैंडलिंग बहुत बेस्ट वे से हम कर सकते हैं, हम ड्राइंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। क्या ये बाकी लोग ऐसा कर पाएंगे? ऑफकोर्स नॉट, ठीक है, वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन भले हमारे स्ट्रक्चर सेम हो, हमारा फंक्शंस उसका डिफरेंट हो रहा है। आप देखिए वेल का फ्लिपर जो होता है फिन्स, उससे वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पे स्विम कर सकते हैं, ठीक है। दो दे आर मैमल्स, दे कैन स्विम स्ट्रांगली इन वाटर। पोटेशियम ऑफ बैट, दे कैन फ्लाई। वो फ्लाइट में हेल्पफुल है। क्या हम हाथों से उड़ पाते हैं? नहीं, बट ये उसी चीज से उड़ पाता है। पोटेशियम वी कैन से फ्लाई। और लेग्स ऑफ कैट, ये वॉकिंग के लिए यूज होंगे, ठीक है। हॉर्स वॉकिंग के लिए यूज होंगे। तो स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फंक्शन अगर अलग है तो ऐसे ऑर्गन्स को होमोलोगस कहा जाता है, और इसका आप कॉन्ट्रास्ट देखो तो उसको एनालॉगस कहा जाता है, ठीक है। मतलब सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन वो यहाँ नहीं जोड़ना है, यहाँ पे यही जोड़ना है, होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। तो हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस और हमने पढ़ा एनाटॉमिकल एविडेंसेस। हम पढ़ रहे इवोल्यूशन का कुछ प्रूफ है क्या, इवोल्यूशन हुआ है आप बता सकते हो क्या, राइट। ऑफ कोर्स यू कैन शो बाय दीज एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में क्या, एक्सटर्नल लुक उनका सेम है, मतलब उनका ओरिजिन सेम है। और एनाटॉमी में क्या, इनका स्ट्रक्चर सेम है, बोन्स का और जॉइंट्स का, राइट। इससे भी सेम कमेंट आप कर सकते हो कि अगर उनकी चीज़ें सेम है, बोन्स और जॉइंट्स, तो उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक। लेकिन एक नई डेफिनेशन आ गई, वो है होमोलोगस ऑर्गन्स। सो होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज हैविंग सेम फंक्शन बट डिफरेंट, हैविंग सेम स्ट्रक्चर सॉरी बट डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन कैसा है, डाइवर्ट। तो ये जो चेंज आप देखते हो है सब कुछ सेम इन स्ट्रक्चर, बट फंक्शन उन्होंने अपना बदल लिया है, और इस चेंज को ही आपने क्या कहना चाहिए, इवोल्यूशन, ठीक है। सो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स वी विल डिस्कस दोस evidences which are very important for both point of view, okay. So keep watching, thank you.